السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کے مارننگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ سائبرآباد پولیس نے 30 دنوں میں 95 لاکھ روپے مالیت کے 310 چوری شدہ اور گم شدہ موبائل فونز کو برآمد کر لیا ہے۔ موبائل فون متعلقہ مالکان کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ DCP کرائمز LC کی نگرانی میں نائک اور سائبرآباد پولیس کی CCSIT سیل اور سوشل میڈیا ٹیموں نے موبائل فون کی بازیابی کے 7ویں مرحلے کو کامیابی کے ساتھ مکمل کیا۔ گزشتہ 30 دنوں میں انہوں نے سینٹرل ایکوپمنٹ شناختی رجسٹر CEIR پورٹل کا استعمال کرتے ہوئے 310 چوری شدہ اور گم شدہ موبائل فونز کا سراغ لگایا اور برآمد کیا۔ برآمد شدہ فونز جن کی مالیت 95 لاکھ روپے ہے، سائبرآباد کمشنر آفس میں ان کے حقیقی مالکان کے حوالے کر دیا گیا۔ DCP نے گم شدہ یا چوری شدہ موبائل فونز کی فوری طور پر اطلاع دینے کی اہمیت پر زور دیا، یا تو قریبی پولیس اسٹیشن میں یا CEIR پورٹل کے ذریعے جو تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں قابل رسائی ہے۔ انہوں نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ موبائل فون حساس معلومات اور عزیز یادوں کو محفوظ کرتے ہیں، جس سے ان کی بازیابی اولین ترجیح ہوتی ہے۔ CEIR پورٹل نہ صرف جلد بازیابی کی سہولت فراہم کرتا ہے بلکہ چوری شدہ آلات کے غلط استعمال کو روکنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ سائبر فراڈ کے خلاف چوکس رہیں اور مشکوک یا نامعلوم لنکس پر کلک کرنے سے گریز کریں۔ بڑھتی ہوئی بیداری کے باوجود بہت سے لوگ اب بھی چوری کے بعد اپنے موبائل ڈیٹا کی حفاظت کے بارے میں علم سے محروم ہیں۔ DCP نے رہائشی کالونیوں اور کمیونٹی کی جگہوں پر CCTV کیمرے لگانے کی بھی سفارش کی۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ رکن قانون ساز کونسل BRS کلوا کنٹلا کویتا نے ریاست کی کانگریس حکومت بالخصوص چیف منسٹر ریونت ریڈی پر سنگین اور سنسنی خیز الزامات عائد کیے اور کہا کہ ریاستی حکومت ایک منظم اور خطرناک سازش کے تحت تلنگانہ کی قیمتی اراضیات کو رہن رکھ کر ریاست کو دیوالیے کی طرف لے جا رہی ہے۔ وہ تلنگانہ بھون میں پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے کہ کویتا نے دعویٰ کیا کہ تلنگانہ اسٹیٹ انڈسٹریل انفراسٹرکچر کارپوریشن TGIIC کے تحت 1,75,000 ایکڑ اراضی کو رہن رکھنے کی سازش کی جا رہی ہے تاکہ ہزاروں کروڑ کے قرضے لیے جا سکیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ان کے پاس اس بات کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں۔ کویتا نے انکشاف کیا کہ حکومت نے خفیہ طور پر ایک GO سرکاری احکامات جاری کیے جس کے تحت TGIIC کو پرائیویٹ لمیٹڈ سے پبلک لمیٹڈ کمپنی میں تبدیل کیا جا رہا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کمپنی کو شیئر بازار اسٹاک ایکسچینج میں لے جا کر مزید قرضے حاصل کیے جا سکیں۔ کویتا نے سوال کیا کہ اگر اسٹاک ایکسچینج میں نقصان ہوا تو تلنگانہ کی قیمتی زمینوں کا کیا ہوگا؟ BRS لیڈر نے الزام عائد کیا کہ ریاستی حکومت نے اس انتہائی اہم فیصلے کو عوام سے خفیہ اور پوشیدہ رکھا۔ انہوں نے کہا کہ ریونت ریڈی کو نہ تلنگانہ کے عوام کے مستقبل اور نہ ہی ریاست کی دولت کے تحفظ کی فکر ہے۔ یہ افسوسناک امر ہے کہ ریاست کی دولت اور وقار کو خطرے میں ڈال دیا گیا۔ کویتا نے پرزور مطالبہ کیا کہ TGIIC کو پبلک لمیٹڈ کمپنی بنانے کے فیصلے کو فی الفور واپس لیا جائے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ گزشتہ 16 مہینے کے دوران ریونت ریڈی حکومت نے 1,08,000 کروڑ روپے کے قرض حاصل کیے ہیں، لیکن ان بھاری قرضوں سے نہ کوئی اسکیم مکمل ہوئی اور نہ ہی کوئی ترقیاتی منصوبہ شروع کیا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ نہ مہالکشمی اسکیم نافذ کی گئی، نہ 1 تولہ سونا دیا گیا، نہ دیگر عوامی وعدے پورے کیے گئے۔ کویتا نے کہا کہ حکومت نے پچھلے قرضجات میں سے صرف 80,000 کروڑ روپے واپس کیے جبکہ باقی 1,00,000 کروڑ روپے کہاں گئے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے پاس ثبوت ہیں کہ یہ رقم بڑے کانٹریکٹرز کو ادا کی گئی اور ان
अदायगियों में से सीधा 20% कमीशन तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए रेवंत रेड्डी की जेब में गए। कविता ने हुकूमत को चैलेंज किया कि अगर ये इल्जामात झूठे हैं तो हुकूमत फौरी तौर पर व्हाइट पेपर जारी करे और वजाहत करे। उन्होंने कहा है कि ये एक वजीर ने अपनी जाती कंपनी और मेगा कंपनी को बिल्स अदा किए जबकि तरक्याती कामों को मुकम्मल नजरअंदाज किया गया। बीआरएस लीडर ने इंकशाफ किया कि हुकूमत ने कांचा अगची बौली में 400 एकड़ जमीन रहन रख कर 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। रियासती हुकूमत दरख्तों और कुदरती वसाइल को तबाह कर रही है और माहौलियाती तवाज़ुन बर्बाद करने की कोशिश कर रही, जिस पर आलमी माहौलियाती कारकुनान भी तशवीश का इजहार कर रहे। कविता ने वाज़ेह ऐलान किया कि बीआरएस और तेलंगाना के अवाम रियासत की अराजियात और वक़ार को दाव पर लगाने की साजिश के खिलाफ हर मुहाज पर आवाज बुलंद करेंगे और कानूनी व अवामी जद्दोजहद करेंगे। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और दोडेला श्रीधर बाबू वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन, सनत व तिजारत और कानूनसाज के उमूर ने राजभवन हैदराबाद में तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा से मुलाकात की और कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने राजभवन में एसएससी टॉपर्स और राजभवन स्कूल के असातिज़ा से बातचीत की। इस साल एसएससी इम्तिहानात में स्कूल ने 97% कामयाबी हासिल की है। गवर्नर ने सबको मुबारकबाद दी और इसके अलावा उन्होंने जी हुसैनी जिसने 574 नंबरों के साथ जिले में टॉप रैंक हासिल किया है, 71 दीगर तलबा के साथ जिन्होंने 500 से ज्यादा नंबर हासिल किए हैं, उन्हें मुबारकबाद दी। असातिज़ा और अमले की मेहनत को सराहते हुए गवर्नर ने कहा है कि उनकी लगन ने स्कूल की तालीमी कामयाबी में कुलीदी किरदार अदा किया। उन्होंने तलबा को मुबारकबाद दी और उनके मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस तकरीब में गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर IAS, स्कूल की फैकल्टी और राजभवन के ओहदेदारों ने शिरकत की। भोंगीर के एमपी चिमला किरण कुमार रेड्डी ने बीजेपी एमपी टाला राजेंद्र के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के मुतालिक किए गए तबसरों पर सख्त रद्दअमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि टाला राजेंद्र आप कम्युनिस्ट नजरिया रखते थे और बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसा लगता है कि बीजेपी में बाएं बाजू से दाएं बाजू की तरफ शिफ्ट होने से आपका दिमाग उड़ा हुआ है। वो बीआरएस में शामिल होने के बाद बीजेपी में शामिल हुए और वहाँ के हालात को नहीं समझते थे। उन्होंने कहा कि इसमें कोई पागल ख्याल नहीं है कि उसे सदारत या कुछ और दिया जाएगा। रियासत को बर्बाद करके उसे वज़ीर आला बनने दें। बीजेपी के सीनियर लीडर आपको जाहिर नहीं करेंगे। ये तमाम दबाव सीएम रेवंत रेड्डी पर डालना दुरुस्त नहीं। उन्होंने कहा कि आपका सारा मसला बीजेपी पार्टी के अंदर है, ये वहाँ हल नहीं होता। आपका मसला आपकी बीजेपी के साथ है, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं। आपने सोचा था कि आप सदर बन सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। वो अपने आप को धोखा दे रहे कि अगर वो सीएम रेवंत रेड्डी की तौहीन करेंगे तो उन्हें ओहदे मिल जाएंगे। ఎవరితోటి ఉంది మీ సమస్య ఉంది ఒకటి బీజేపీ తోటి ఇప్పుడు ఎందుకంటే మిమ్మల్ని ఏదో చేస్తారని చెప్పి మీరు ఆ పార్టీలకు పోతే మిమ్మల్ని తీసుకొని వెనక బెంచ్లో కూర్చోబెట్టారు. మిమ్మల్ని పట్టించుకునే పరిస్థితి లేదు అక్కడ. ఇగొచ్చే ఆగొచ్చే అని చెప్పి ఏదో పేపర్లలో రాస్తుంటే మీరు అధ్యక్షులు ఏదామనుకుంటారు, కాలేకపోయారు. దాంతో రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి గారిని తిడితేనో, ముఖ్యమంత్రి గారిని గురించి నెగిటివ్ మాట్లాడితేనో, ముఖ్యమంత్రి చేస్తున్న పనుల గురించి మాట్లాడితేనో साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इस हफ्ते के आखिर में नशे में ड्राइविंग का एक खसूसी टेस्ट मुनक्किद किया गया, जिसके नतीजे में 272 मुजरिमों को गिरफ्तार किया गया। कुल 190 टू व्हीलर गाड़ियां, 12 थ्री व्हीलर और 66 फोर व्हीलर गाड़ियां और 5 हैवी व्हीकल्स को जब्त किया गया। 245 मुजरिमों को 35 मिलीग्राम 100 मिलीलीटर और 200 मिलीग्राम 100 मिलीलीटर के दरमियान खून में अल्कोहल की मकदार के साथ पकड़ा गया। 18 मुजरिमों को 200 मिलीग्राम 100 मिलीलीटर और 300 मिलीग्राम 100 मिली के दरमियान खून में अल्कोहल की मकदार के साथ पकड़ा गया। 9 मुजरिमों को 301 मिलीग्राम 100 मिलीलीटर से 500 मिलीग्राम 100 मिलीलीटर के दरमियान खून में अल्कोहल की मकदार के साथ पकड़ा गया। तमाम गिरफ्तार अफराद को अदालत में पेश किया गया। अगर कोई शराब के नशे में ड्राइविंग करता है और लोगों की जान लेकर हादसात का बाइस बनता है तो ऐसे अफराद को भारतीय न्याय संहिता 2023 की दफा 105 के तहत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा, जिसके लिए ज्यादा से ज्यादा सजा 10 साल कैद और जुर्माना है।
तमाम कोशिशों के बावजूद दिल्ली में फिजाई आलूदगी अभी भी तय मियाद से बहुत ज्यादा है। आलम ये है कि अप्रैल में भी राजधानी आलूदगी के मामले में 5वें मुकाम पर रही थी। अप्रैल में यहाँ PM 2.5 की औसतन सतह 19 दर्ज की गई थी। ये मामूल की सतह से ज्यादा है। वहीं 80% दिन आलूदगी मामूल के सतह पर रही। ये जानकारी सीनियर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CREA के अप्रैल माह की आलूदगी तज्जिया रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि मुल्क के 273 शहरों में से 248 यानी 90% में अब भी आलूदगी की सतह आलमी इदारे सेहत WHO के मियार से काफी ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक 248 शहरों में 227 में PM 2.5 की सतह कौमी मियार पर खड़ा रहा। वहीं महज 7 शहरों में ये WHO के मियार के मुताबिक रहा। मालूम हुआ कि कौमी मियार में PM 2.5 की सतह 60 माइक्रोग्राम की फी क्यूबिक मीटर और MGCM और WHO मियार में ये 15 माइक्रोग्राम फी क्यूबिक मीटर MGCM तक तय है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें बताया गया है कि 15 मई 2025 की शाम 5:29 तक सिविल हवाई जहाज के ऑपरेशंस के लिए 32 हवाई अड्डों की आर्जी बंदिश का हवाला नोटिस जारी किया गया। मतलब किया जाता है कि ये हवाई अड्डे अब फौरी तौर पर सिविल एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस के लिए दस्तयाब हैं। मुसाफिरों के लिए सिफारिश की जाती है कि वो बराह रास्त एयरलाइंस के साथ फ्लाइट स्टेटस चेक करें और बाकायदा अपडेट्स के लिए एयरलाइन की वेबसाइट की निगरानी करें। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर देवेंद्र यादव ने बीजेपी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि दिल्ली में इसकी ट्रिपल इंजन हुकूमत ने अवाम को मुफ्त बिजली देने के बजाय बिजली के बिलों में पावर परचेजेस एडजस्टमेंट को कॉस्ट PPAC के जरिए महंगाई का एक और झटका दिया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में बीजेपी भी आम आदमी पार्टी की तरह बिजली कंपनियों के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ में मसरूफ है। देवेंद्र यादव ने बताया कि DERC दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने मुख्तलिफ डिस्कॉम कंपनियों को PPAC की मद में इजाफी वसूली की इजाजत दी। इसके तहत BSES यमुना 13.33%, BSES राजधानी 13.54% और टाटा पावर 19.22% इजाफी PPAC चार्जेस बिजली के बिलों में शामिल करेंगी, जिसकी दिल्ली कांग्रेस मुखालिफत करती है। जहां एक तरफ हिंदुस्तानी फौज की ऑपरेशन सिंदूर की बाज़गश्त पूरे मुल्क और दुनिया में सुनाई दे रही, वहीं दूसरी तरफ लड़कियों के लिए रोल मॉडल के तौर पर जंग से मुतालिक प्रेस ब्रीफिंग का हिस्सा बनने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वोमिका सिंह भी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। आज उनका नाम शहर हो या देहात बच्चे बच्चे की जुबान पर रटा हुआ है। खासतौर से नौजवान तबके में लोग अब अपनी ब्लैक थार और स्कॉर्पियो समेत SUV मल्टी यूटिलिटी व्हीकल समेत दीगर महंगी कारों की दोनों खिड़कियों के दोनों जानिब कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वोमिका सिंह के बड़े बड़े फोटो और ऑपरेशन सिंदूर प्रिंट करवाने का पेंटर को ऑर्डर दे रहे। कर्नल सोफिया कुरैशी की हकीकी खाला उत्तर प्रदेश के शहर मुरादाबाद में इंदिरा चौक के करीब महिला मकबरा में रहती हैं। जब उन्हें कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में लोगों की राय के बारे में बताया गया तो वो बहुत खुश हुई और हाजरा बेगम का कहना है कि हमें फख्र है कि उनकी भांजी ने मुल्क और दुनिया में अपने मुल्क, अपनी बरादरी और अपने खानदान का नाम रोशन किया है। अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती खसारा कम करने के लिए मुआहदा तय पा गया। अमेरिकी वजीर खजाना यानी कि ट्रेजरी ऑफ स्टेट स्कॉट बेसेंट का कहना है कि वो 2 रोजा मुलाकातों के बाद चीन के साथ एक मुआहदे पर पहुंच गए हैं, जिससे अमेरिका को तिजारती खसारा कम करने में मदद मिलेगी। ताहम उन्होंने इस मुआहदे के बारे में ज्यादा तफसीलात नहीं बताई हैं और न ही ये बताया कि अमेरिका के तिजारती खसारे को कैसे कम किया जाएगा। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि मुआहदे से मुतल्लिक मजीद तमाम तफसीलात शेयर की जाएंगी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इन मुज़ाकरात के नताइज से
पूरी तरह आगाह हैं। चीन के नायब वज़ीर आज़म ही लाइफंग और 2 चीनी नायब वज़रा ने मुज़ाकरात में हिस्सा लिया। दोनों फरीकों ने चीन से दरामद की जाने वाली मसनूआत पर अमेरिका की तरफ से आयद करदा 145% महसूलात और चीन की तरफ से अमेरिकी अशिया पर आयद करदा 125% महसूलात को कम करने के किसी मंसूबे का जिक्र नहीं किया। अमेरिकी हुकाम ने 2 रोजा मुज़ाकरात को एक मुआहिदा करार दिया जिससे अमेरिका के 1.2 ट्रिलियन डॉलर के तिजारती खसारे को कम करने में मदद मिलेगी। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापू। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।